हेलो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एवरी एटम कंसिस्ट अ सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो पॉजिटिव है ये क्या है आपका न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व टू द न्यूक्लियस। आपको ये पिक्चर में देखो क्लियरली, सेंटर में क्या है आपके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड चार्ज लेस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं तो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं, किसको न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस if we are consider the entire mass and the positive charge is concentrated in the center of the atom, okay, but Rutherford theory or according to Rutherford model of an atom is like a small scale solar system. Suppose this nucleus is like a sun and electron like a planet, then the Coulomb force between an electron and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force. So according to the classical mechanics, the electron should move around the nucleus in well definite orbit. And according to the electromagnetic theory of Maxwell, a charged body particle revolving at a high velocity radiate energy continuously and undergo loss of such energy. सपोज अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली लॉस इट्स एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड फाइनली क्या होगा, जब इस तरह से ये मूव करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा finally it will fall in the nucleus, but this behavior of electron have never been observed. But a scientist Niels Bohr in 1990 proposed his own theory of an atomic model based upon the quantum theory of radiation. He adopted the nuclear model of atom suggested by Rutherford and made certain modification to explain the stability of an atom. If continue the electron are revolve, then energy will be a loss. So this fundamental theory modified by Bohr's atomic model. So student, according to Niels Bohr, an atom consists of very small, heavy, positively charged nucleus. Center में आपको दिख रहे हैं positively charged nucleus in the center, surrounded by electron. The electron revolve around the nucleus in certain selected fine circular orbit. जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ब्लैक सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है, these orbit are called stationary orbit. As long as an electron remain in a particular orbit, it does not radiate any kind of energy and its energy content remain constant in that orbit. Therefore, these stationary orbit are also known as non-radiating orbit. And student, the stationary orbit are associated with a definite amount of energy. They are known as energy level or energy shell. The orbit are represented by natural number 1, 2, 3, 4, etc. And these energy level also called as principal quantum number and also represented by letter K, L, M, N, etc. And student, the energy in orbit goes on increasing as the orbit go away from the nucleus. That means के शेल की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन अ पर्टिकुलर सेल, देन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2n²। सपोज वी अप्लाई फॉर अ के शेल, देन के लिए अप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू क्या है 1, देन 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आया 2। Now we consider L shell, then 2 multiply n square, n की वैल्यू क्या है 2, then 2 square, 2 multiply 2 square सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 8। इसलिए इस
2n² फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल। सो के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एल में कितने हो गए 8, एम में कौन कितने हुए 18 एंड एन में कितने हो गए तो 32। And student, these represent the electronic configuration. Suppose we represent a calcium atom. The atomic number of calcium is 20. Now we represent K, L, M, N shell. Maximum number of electron in K में 2, L में 8, नेक्स्ट वन हम 20 क्या होते जाएंगे आगे आगे करके इसको फिलअप करते जाएंगे। देन KLMN की कैपेसिटी क्या हो गई आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 एंड मास नंबर कितना है तो 40। 20 एटॉमिक नंबर हम नीचे की साइड लिखते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते समय, और मास नंबर कहाँ लिखते हैं तो ऊपर की तरफ। सपोज यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल लें सोडियम का, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, मास नंबर इज 23। अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए n इक्वल टू a माइनस जेड। ए क्या है आपका एटॉमिक मास नंबर, z क्या है एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, देन यू विल बी फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो सोडियम में कितने न्यूट्रॉन आ गए 12। अगर हम यहाँ पे फिलअप करें KLMN में तो K में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 2, देन कितने दिख रहे हैं आपको 8 और लास्ट में कितने दिख रहे हैं आपको 1, 2 8 1। ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।